Okay friends, after completing exercise 1.1, now we will learn how to represent the number on the number line. Friends, it is very much easy when we represent natural number. It is very much easy. Directly we can represent like this. Natural number starts from 1, so we can write down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These all are natural numbers. We can directly represent on a number line. When it comes to whole number, it's very simple. For example, whole number starts from 0, 1, 2, 3, and it goes on and on and on. Okay, when it comes to represent z of integers, means set of integers, it is also very much easy. From the left side of 0, all the integers are negative. Okay, and from to the right side of 0, all the integers are positive. So it is very much easy to represent natural number, whole number and set of integers. But when it comes to rational number, okay, how to represent 5 upon 4, 6 upon 8, 2 upon 9, 4 upon 10, any number which is given in p upon q form. We will learn that. Now we will learn, हम सीखेंगे कि ये नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. Okay friends, let's go forward to represent a natural number, rational number. Okay, now representing numbers means now representing rational number. Okay, rational number on number line. For example friends, if I write here 6 upon 8. Okay friends, it is very much easy. In few minutes you will understand how to represent this number. Okay, yes friends, in few minutes, bus 5 minutes. Now first of all, you have to observe the number. Now if we see the number here, can you see anything here? कोई पण number नहीं. Okay, there is no number here. Okay, कोई पण number इधर है नहीं. Okay, that means no number means we will write 0, and after 0 comes 1. So this is the first thing to identify. So 6 upon 8 lies between 0 and 1. Okay, if I write 4 upon 8. Okay, now is there something here? Nothing. That means 0, and after 0 comes 1. So this number lies between 0 and 1 again. If I write 1 integer 6 upon 8. So what is this? 1. And after 1 comes 2. So this number lies between 1 and 2. So first of all, we have to identify the number lies between which two number. Okay, these all are rational numbers and these are also rational numbers. So first we identify, हम लोग को ये पता करना है कि ये नंबर कौन से नंबर के बीच में आता है. Okay, then we will understand how to identify. Let's go forward. Now we will see how to identify these numbers. Okay, now first of all, what we wrote? 6 upon 8. So we know it lies between 0 and 1. So we will draw line. Okay, we will draw number line. 0, both are positive. 1. Now friends, just pay attention. Denominator D. Okay, this is denominator, we are writing as D. No need to write, I am just writing for explanation. Division. How much number is there? 8. So we have to divide into 8 division. Okay, 0 और 1 के बीच में 8 division होना चाहिए. 8 point, 8वां जो मैं point करूँगा 1 पे आना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Understood? ये 8 है इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 1 upon 8, 2, 2 upon 8, 3, 3 upon 8, 4, 4 upon 8, 5, 5 upon 8, 6, 6 upon 8, 7 upon 8 और ये 8 upon 8. If we solve this, इसको जो हम solve करेंगे 8 upon 8 को, तो कट होके 1 हो जाएगा. So we got it here. Understood? So friends, now 6 upon 8 is directly we can say it is here. So in this way we can represent
ऑन अ नंबर लाइन। 0 और 1 के बीच में आपको सब कुछ आ ही जाएगा। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर एग्जाम्पल, वी विल गो फॉरवर्ड एंड टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इधर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर इज स्मॉल। नाउ इफ वी राइट 8/6, नाउ टू हाउ टू रिप्रेजेंट। नाउ इफ वी डू लाइक दिस, वी नो डैट कुछ नहीं है मीन्स 0 और 1 के बीच आएगा। ओके, सो योर आई विल राइट 1। दूसरी स्टेप क्या थी, इधर 6 डिवीजन है, तो 6 डिवीजन करने की हम लोग को 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके फ्रेंड्स, 6, ये 1/6 हो गया, दिस इज 2/6, दिस इज 3/6, 4/6, 5/6, ये हो गया 6/6। ये तो आया ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये तो आया ही नहीं। सो नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू एक्सटेंड द लाइन, फिर एक्सटेंड लाइन। ये 1 हो गया, फिर हम लोग को ये 2 लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरी तरीके से भी हम सीखेंगे। 0 और 1 के बीच में कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6, उतना ही डिवीजन 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हो गया 7/6, ये हो गया 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हो गया 12/6। 12/6 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, सो ये 2/1 दैट इज इक्वल टू 2 मिल गया। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, सो दिस आंसर वी गॉट इट हियर। ओके, अब दूसरी तरीके से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं 8/6 को, दिस वॉज द वन वे। ये भी राइट ही है, तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द अनदर वे टू सॉल्व दिस, ओके, द अनदर वे 8/6 वी कैन सॉल्व इज, okay, another way to solve 8/6, how to represent this on number line. Now we can divide this number. So if we divide this number, I am showing you here how to divide. 8 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रखेंगे, 6 1 जा 6, we got 2 here. So now if we write in a mixed fraction, it is a simple fraction, okay, improper fraction. If we write in a mixed fraction, 6 के वजह में 6 ही आएगा। okay, ये 2 remaining will come here and 1 will come here. So we got this. now अब हम लोग को ये इधर 1 मिला, तो इट विल कम बिटवीन 1 and 2 as we studied earlier. तो we'll draw number line between 1 and 2 only, 1 and 2. कितने डिवीजन आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 and 6. ओके, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज 1/6 means 1 integer 1/6. This is 2/6, 1 integer 2/6. This is 3/6, 1 integer 3/6. This is 4/6, 1 integer 4/6. This is 5/6. This is 1 integer 5/6. This is 6/6, 1 integer 6/6. Understood? So 6 1 6 plus 7/6. 6 plus 6 2 6 over. So in this way 6 1 6 plus 6 12/6. So in this way we can solve this. अभी हम लोग को मालूम होगा ये इधर आया। ओके, सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको पता आया चल ही गया होगा हाउ टू सॉल्व दिस सम। नाउ लेट्स गो टू शो द रैशनल नंबर। ओके, 2 रैशनल नंबर के बिटवीन कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, हाउ मच रैशनल नंबर कैन बी देयर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ लाइन, ये 0 है और ये 1 है। ओके फ्रेंड्स, कितने भी डिवीजन कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, तो ये हो गया 10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, ये हो गया 10/10। ओके फ्रेंड्स, अगर इसको मैं वाइड करूँ, कोई भी नंबर को वाइड करूँ, चलो ये नंबर को वाइड करूँ, इधर लिखूँगा 4। ओके, दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा इधर, ये 2 नंबर के बीच में हम लोग लिखेंगे, विल सी 4/10 और ये हो गया 5/10। ओके,
आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेट अस सी नाउ व्हाट वी कैन राइट डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी डिवीजन कर देते हैं। ओके नाउ फ्रेंड्स, हम लोग ये देखेंगे कि ये कोई भी डिवीजन 1 2, ओके नाउ व्हाट विल सी 4 के बाद क्या आएगा 4.1, उसके बाद 4.2, 4.1 अपॉन 10, 4.1 अपॉन 10, ओके 10 डिवीजन करेंगे। लेट अस डू 10 डिवीजन, ओके so it will be very easy for you to understand। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay so 4.3 upon 10, 4.4 upon 10, 4.5 upon 10, 4.6 upon 10, 4.7 upon 10, 4.8 upon 10, 4.9 upon 10 और ये आ गया 5.0 upon 10। Okay, so friends, there are many rational numbers. If we solve this, okay, so what will have we get 41 upon 100, okay, and if we solve this 42 upon 100, 43 upon 100, 44 upon 100, 45 upon 100, 46 upon 100, 47 upon 100, 48 upon 100, 49 upon 100, 50 upon 100, ये दो काटेंगे तो 5 upon 10 फिर से आ गया। ओके, सो दिस इज 4। ओके, सो फ्रेंड्स देर आर मैनी, अभी फिर हम ये दोनों के बीच में से भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, फिर वो 1000 के बिटवीन आएगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो देर आर मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये दो रैशनल नंबर के बीच दोनों इतने सारे हैं, फिर ये दो को निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर वो दो को निकालेंगे तो 10,000 में से बिटवीन में से आ जाएगा। Okay friends, so there are many rational numbers between two rational number. Okay, understood? Now let's go to exercise, how to solve the exercise. Now friends, exercise 1.2. Okay, exercise 1.2 we are solving exercise 1.2. Now we have to represent this number on number line. So first of all we have to draw a number line. Okay, this we are solving number 1 now friends, as I told you 4, नीचे 4 है और इधर कुछ नहीं है, सो ये 0 एंड 1 के बीच में आएगा, ऐसा हम लोग को मानना है। दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर जो बड़ा हो तब दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, बट वी विल सॉल्व इन बोथ वेज, जैसे आपको समझ में आया। ओके, नाउ 0 और 1 के बीच में आकर इधर हम लोग 0 लिखेंगे, न्यूमरेटर बड़ा हो तो 1 को हम लोग को बहुत करीब लिखना है, बट इधर 1 को लिखना नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है तो 1 के बाद ही ये नंबर जाएगा। नाउ हाउ मच डिवीजन 4, 1 2 3 एंड 4, सो 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, ये हो गया 4 अपॉन 4। अभी नहीं आया तो हम लोग को इधर 2 लिखना है। 0 और 1 के बीच में जितना डिवीजन था उतना ही 1 और 2 के बीच में डिवीजन करना है, यानी कि 4, 1 2 3 4, तो इधर भी 4 ही करना है, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज 5 अपॉन 4, 6 अपॉन 4, 7 अपॉन 4 एंड 8 अपॉन 4, ये आ गया 7 अपॉन 4 मिल गया हम लोग को। सो दिस इज राइट। नाउ अनदर वे, फर्स्ट ओके, फर्स्ट वे, ओके माही वे नहीं है, फर्स्ट वे। सेकेंड वे विल ट्राई। ओके, सेकेंड वे, सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 7 के साथ तो डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, व्हाट वी गेट 3, सो 4 विल कम हियर, 1 इंटीजर 3 अपॉन 4। तो अभी इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऑन द नंबर लाइन। ओके, सेकेंड वे, सम इज 1 एंड द सेम, ये आंसर राइट ही है तुम लोग का, ये इसमें भी आंसर राइट ही आएगा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, इट विल कम बिटवीन 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 के बीच में आएगा। ओके, सो विल राइट ईयर 1 एंड ईयर 2। कितना डिवीजन है 4, 1 2 3 और 4। ओके, ये 3 अपॉन 4 है, सो 1 इंटीजर 1 अपॉन 4, 1 इंटीजर 2 अपॉन 4, 1 इंटीजर 3 अपॉन 4 एंड 1 इंटीजर 4 अपॉन 4। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द आंसर वी गॉट हियर। सो वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 1। वी कैन डू इन दिस वे आइदर इन दिस वे, बोथ आर राइट। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगर आपको समझ तो आई हो गया होगा, बट इफ़ यू
could not understand some speedy, if I went to a little speedily, you can just skip the video behind and check it. Okay, now let's go to question number 2. Question number 2 is -5/6. नेगेटिव नंबर है, इधर कुछ नहीं है, सो 0 एंड -1 के बीच में आएगा. इधर कोई भी नंबर माइनस हो तो -1. ओके, सो 0 इधर लिखेंगे, कोई नंबर है ही नहीं, न्यूमरेटर इज स्मॉल, सो एक ही लिखना है. ओके, हाउ मच डिवीजन टू मेक 6? 1 2 3 4 5 एंड 6 -5. ओ वी गॉट इट रॉन्ग. यस फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग को करना नहीं है बिकॉज इज पॉजिटिव 1. ओके, सो वी राइट, ड्रॉ अगेन नंबर लाइन. इधर -1 आएगा और इधर 0 आएगा. एवरी टाइम प्लीज मेक श्योर दैट माइनस और नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0. ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0. कितना डिवीजन करना है? 6. 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया. नाउ -5, -1/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 and -6/6. If we solve it, we get -1. So we got it here. Okay friends, so negative numbers are always to the left side of 0 on the number line. So we completed this exercise 1.2 first sum. Now we are heading towards second sum. Okay, second sum is also very much easy. Second sum is like represent the numbers. What number we have to represent numbers? Okay, like -2/11, -5/11 and -9/11. All the denominators are same, so it will be very easy for us. हम लोग के लिए बहुत easy होगा क्योंकि हम सिर्फ एक ही नंबर लाइन पे ये तीन नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे. देखते हैं. ओके, इधर 0 लिखेंगे और इधर -1 लिखेंगे बिकॉज ऑल द नंबर आर इन माइनस एंड माइनस और नेगेटिव, एनी नेगेटिव इंटीजर्स लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0. नाउ कितने डिवीजन करने हैं? 11 करने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हमेशा 1 पर आना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 and -10/11. -11/11 काटेंगे तो आएगा आंसर -1. We got it. -2 is here, -5/11 is here and -9/11 is here. Okay friends, so this is the solution of your second sum. Now let us head towards the third sum. Okay friends, write 5 rational numbers which are smaller than 2. Smaller than 2. It is very much easy. डायरेक्टली हम नंबर लाइन से भी लिख सकते हैं स्मॉलर देन 2. 2 से स्मॉल क्या है? 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4, -5 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन. हम लोग कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखना है. इफ़ यू राइट 1 आंसर में क्या लिख सकते हैं? राइट एनी 5 रैशनल नंबर. सो 1 2 3 4 5 6 7 गम्मे ते તમે લખી શકો. यू कैन राइट एनीथिंग. तुम कुछ भी नंबर लिख सकते हो, एनी 5. कोई भी आपको रॉन्ग दे नहीं सकते एंड नो वन कैन गिव यू रॉन्ग बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ नंबर rational numbers which are smaller than 2. Now if you want to write, you can write this way 5/-6 because it lies between 0 and -1. ये दो बीच नंबर के बीच आएगा तो रैशनल नंबर ये. -10/8 कुछ भी लिख दो. अंडरस्टूड? नाउ हियर 5/6 वी नो दिस लाइज बिटवीन 0 and 1 बिकॉज इधर कुछ नहीं है तो 0 and 1. 1 इंटीजर 4/6 दिस लाइज बिटवीन 1 and 2. 2 से तो छोटा ही है. सो यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो. You can also write these types of number. Okay friends, so it is a very easy, any rational number. Okay friends, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक में जो आंसर दिया है वही हम लोग लिखेंगे. So we are learning maths. हम लोग को मैथ्स सीखना है और मैथ्स में सोचना है. जो बुक में है वही नहीं सोचना है.
हम और भी सारी एक्सरसाइज करेंगे जो रैशनल नंबर से रिलेटेड है। बुक्स का ही करेंगे तो बुक्स का ही दिमाग में आएगा, वो आना भी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ द बुक्स। हम लोग को ये आइडिया बुक्स के बाहर कहाँ काम आएगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस ऑल आर द आंसर्स विच यू कैन राइट। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question, find 10 rational numbers between -2 and 5. So first of all we will write -2 upon 5 and -1 upon 2. So how to find rational number between these two rational number? So friends, first of all we have to equal the denominator. Okay, कैसे denominator equal हो सकता है? So we know that -2 upon 5 and 1 upon 2, दोनों में 10 आ सकता है डिनोमिनेटर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। फिर से कहा, आगे कहा था कि सिर्फ आपके भाई को या बहन को आइसक्रीम दे और आपको आइसक्रीम ना दे तो कैसा लगे? वी फील वेरी बैड। हाँ, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी। सो मल्टीप्लाई बाई 2 इधर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ सो व्हाट वी गॉट हियर, -4 upon 10 and we got here 5 upon 10। ओके, सो लेट अस चेक, -4 से बड़ा क्या है? -3 upon 10, उसके बाद -2 upon 10, देन -1 upon 10, देन 0 upon 10, ओके, देन 1 upon 10, देन 2 upon 10, उसके बाद 3 upon 10, उसके बाद 4 upon 10 और उसके बाद 5 upon 10 और इधर आएगा -4 upon 10। ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया फ्रेंड्स। तो ये दो नंबर्स के बीच हम लोग को हाउ मच फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू। इसका तो वैल्यू ये आ गई और ये हम लोग ने इधर देखा, इसकी वैल्यू ये आ गई और ये हम लोग ने इधर देखा। कितने रैशनल फाइंड करने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 हुए, दो कम है। तो फ्रेंड्स ये दो कम है, इसीलिए हमें वी हैव टू थिंक कि अब इसके अंदर दो कैसे ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नथिंग टू डू मच, व्हाट टू डू इज, ये जो नंबर है, ओके, 5/2, ये जो नंबर है इसे हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था? ये जो नंबर आया था, ओके, ये नंबर तो हमें इसकी तो वैल्यू मिल ही गई और वी ऑल्सो गॉट दिस वैल्यू, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, 2/2, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन व्हाट विल वी गेट? ओके, then what will we get? We will get here -8/10 and we'll get here 10/20. Oh sorry, we'll get here 20. So -8/20 और 10/20। फिर देखेंगे डिनोमिनेटर सेम, -8 के बाद क्या आएगा? नाउ वी विल चेक के -8 और -8/20 और 10/20। सो -8 से बड़ा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 minus. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -8/20 और 9/20। हम लोग इसमें से कोई भी 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। वी वांट एनी 10 रैशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। क्योंकि दो रैशनल नंबर के बिटवीन तो कितने सारे रैशनल नंबर हैं। देयर आर मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। उसे छोटा करते जाएंगे तो मिलेगा 1 रुपये और 2 रुपये के बीच भी 1.1, 1 रुपीज़ 1 पैसे, 1 रुपीज़ 2 पैसे, 1 रुपीज़ 3 पैसे, ऐसे आता ही जाएगा। सो 1 रुपये और 2 रुपये के बीच में भी 100 पैसे का डिफरेंस है, तो इसीलिए फिर हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू। ओके,
So I will show you one and rest two will be your homework. Okay, you have to try on your own. Now let us try to solve 2 upon 3 and 4 upon 5. As suggested, as I told you that we have to first of all equal the denominator. If we equal the denominator, what will we get here? We have to multiply by 5. Here we have to multiply by 3. दोनों को आइसक्रीम देनी है. ओके, सो टू फॉर 10 अपॉन 15 मिलेगा हम लोग को इधर, और इधर मिलेगा 12 अपॉन 15. वे 11 सिर्फ एक नंबर मिला हम लोग को. वी गॉट ओनली वन नंबर. वी गॉट ओनली वन नंबर बिटवीन 10 अपॉन 15 एंड 12 अपॉन 15. सो 11 एक ही नंबर मिलेगा हम लोग को, तो 5 चाहिए. वी वॉन्ट 5. तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2 अपॉन 2. इधर भी करेंगे 2 अपॉन 2 से. 10 टू 20, 20 अपॉन 30 एंड 12 टू 24 अपॉन 30. क्या आएगा? 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23. तीन ही नंबर आए. ओके, 21 अपॉन 30, 22 upon 30, 23 upon 30. So we got only 3 numbers here. We want 5 numbers. So what will we do? We will multiply this whole number. ये दो और दो से मल्टीप्लाई के काम नहीं बना, 3 और 3 से कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है. 3 upon 3 से कर लेंगे यार. मैथ्स इज़ वेरी सिंपल. मैथमेटिक्स नहीं करने का, मैथमेटिक्स करने का. ओके, 10 3 जा 30. ओके, 10 3 जा 30 एंड 15 3 जा 45. 12 3 जा 36. ओहो 45. देखते हैं करीब करीब आए हैं. 31 अपॉन 45, 32 अपॉन 45, 33 अपॉन 45, 34 अपॉन 45 एंड 35 अपॉन 45. क्या आ गए हैं? 1 2 3 4 एंड 5. यस फ्रेंड्स, वी गॉट इट. तो ऐसे हम लोग को करके सर्च करना है. और अगर 6 बोल्ट तो इधर 4/4 से कर देते. सेम वे ऑल एक्सरसाइज डू ऑल द आंसर सेम वे. अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लाऊंगा. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें है कि राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2. -2 से जो ग्रेटर है उसका रैशनल नंबर लिखना है. तो -2 के बाद -1 0 1 2 3 4 ये सारे आप लोग लिख सकते हो. और इसके बीच वाले नंबर भी आप लोग लिख सकते हो. जैसे 1 और 2 के बीच में आता है 1/2. ईजी 1/5. कुछ भी आप लोग लिख सकते हो. ये भी आंसर आपको होमवर्क में करना है, जैसे कि मैंने आंसर तो बता ही दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5. ओके, आफ्टर दिस फाइंड नंबर 7 क्या है? फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4. ओके, ये दो के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है. ओके, तो हम लोग पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे. 3/5 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे. मल्टीप्लाई बाई 4, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाई 5. 3 4 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20. मिस्टेक आर नॉट एक्सेप्टेबल. 5 3 जा 15 अपॉन 20. तो क्या आया? 13/20 आया और 14/20 आया. हम लोग को 2 नहीं चाहिए, हम लोग को तो 10 चाहिए. इसीलिए ये 4. ओके, इसलिए क्या करना पड़ेगा? नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. ओके, 1/2 से करेंगे. 2/2 से करेंगे. मल्टीप्लाई 2/2 देखते हैं क्या आता है. 12 जो 24/40 आया. 15 2 जा 30/40 आया. ये तो सर ओके 25 26 27 28 29 5 ही आए. तो ऐसे आप 3/3 से ट्राई करो, 4/4 से ट्राई करो, नहीं आएगा तो 5/5 से फिर से ट्राई करो. ओके, सो यू विल गेट द आंसर. सो फ्रेंड्स, टू लर्न इन इंटरेस्टिंग वे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो यू कैन जस्ट गिव अ लाइक and share this video with all your classmates. Thank you friends.